आप देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट्स रेंज में है। कुछ ग्रुप में, कुछ पॉकेट्स में बाइंग आ रही है। जैसे अभी फ्यूचर ग्रुप में बाइंग आई है। फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर लाइफस्टाइल, इन दोनों को देखिए, एकाएक इन दोनों के अंदर ही खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी है। फ्यूचर कंज्यूमर में एक स्पाइक है, करीब करीब 3% ऊपर आया। फ्यूचर लाइफस्टाइल में भी एकाएक बाइंग आई है, ये भी करीब करीब 1.5% ऊपर है। तो दोनों ही शेयरों में एकाएक खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी है। चलिए अब बातचीत करते हैं कुछ और खास मेहमान से, क्योंकि आज एक खास दिन है। चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स के कारोबार संभाला और उससे बातचीत करने के लिए हमारे मिस्टर एस रामादोराय, फॉर्मर वाइस चेयरमैन टीसीएस के मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जो एक आज पूरा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, टाटा सन्स के चेयरमैन बने एन चंद्रशेखरन, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? I would like to formally congratulate Chandra for being appointed as the chairman of Tata Sons. It's a great recognition for a professional who will take the group places. I wish him the very best. He will build a great team and he will focus on the opportunities as well as the things that need critical attention at all times. I think having seen him from close quarters, he learns very quickly, he applies the learnings and also builds an excellent team, which is the most critical component of any scale problem, where the right teams make the right decisions with a leadership which is exemplary. I wish him all the very best. राइट मिस्टर रामादोराय, आपने बहुत ही क्लोजली काम किया है मिस्टर चंद्रशेखरन के साथ। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका इतने लंबे दौरान, जो आपने उनसे बातचीत की होगी या जिस तरीके से उनका काम करने का ढंग है, क्या कुछ एक्सपीरियंसेस रहे आपके? No, we have had some excellent challenges in the past. Example, when there is a very, very difficult client where a solution has not worked out because the previous solution provider did not complete it on time. So we brought in Chandra onto the fold to do on behalf of TCS that particular program or a project. I think that shows immediately you take a problem on hand and you try to deploy your capabilities to the best of your abilities, and then the client tells you that he did a terrific job or the team led by him did a terrific job. And I have had numerous instances of that, whether it was in Washington, whether it was in the UK or in other parts of the world, including in India at the Santa Cruz Export Promotion Zone. So to me, he is not afraid of taking up the challenges which are given to him. And when you build leadership, some of us push a lot of problems, just like our bosses pushed a lot of problems because they trusted you and they knew you would solve it. So I have full confidence that he will build those kind of excellent qualities into the problem solving capabilities. जी मिस्टर रामादोराय, एक चीज़ और भी है कि चंद्रशेखरन ने पिछले 30 सालों में एक बड़ा एक्सपीरियंस है उनको टाटा ग्रुप में इससे के साथ एसोसिएट रहने का। स्पेशली टीसीएस में वो काफ़ी समय तक रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा समय देने के बावजूद उनके सामने चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं? क्योंकि वो पूरे ग्रुप में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखें, जिनको तवज्जो दें, जिसकी वजह से वो एग्जीक्यूशन आसान रहेगा उनके लिए? I think there are no quick fixes, and you must at all times conduct yourself in the most exemplified, ethical and value-based manner. I think grown up in the Tata Group, 30 years is not a small time. Knowing the operations of the most successful company in the group, TCS, I think you will see him uphold the traditions of what this group stands for. I think that's what he will inculcate across the entire companies in the group and reinforce that repeatedly, and some of the technology inputs like the digitization will all help to communicate that message in real time. Connecting more than 600,000 people across the group from one company which is 370,000 people today is the scale-up opportunity which, with the kind of digitization possibilities, it will only accelerate in my opinion.
ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच मिस्टर रामेंद्र राय, आपकी से बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू वेरी मच शेयर करने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस मिस्टर चंद्रशेखरन के साथ। आपको ये भी याद दिला दें कि आज से ही टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन कार्यभार संभाल रहे हैं, चेयरमैन का टाटा सन्स ग्रुप के। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों की तरफ भी बढ़ते हैं। हमारे साथ जोधपुर से नारायण जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार नारायण जी, पूछिए। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर, हमने वेदांता खरीदे हैं 600 शेयर। वेदांता के 240 के भाव पर आपने खरीदे हैं शेयर्स? हाँ, 600 शेयर। क्या करना चाहिए? कब तक के लिए होल्ड करेंगे? करीब 5-6 महीने का है। 5 to 6 मंथ्स का आपका नजरिया है, ठीक है। सुमित, आपसे सवाल होगा। वेदांता में अभी इनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं 30 रुपए के आसपास के, और 6 महीने रुक सकते हैं। यहाँ पर चाल किस तरीके की देख रहे हैं? होल्ड करने की सलाह रहेगी। मेटल स्टॉक के अंदर तेजी लगती है, आने वाले 3 से 4 महीने अच्छे हैं। इन स्टॉक्स के अंदर प्रेजेंट लेवल से 10 से 20% के बीच की तेजी देखने को मिल सकती है। स्पेशली अगर वेदांता की बात करेंगे, 270 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट पड़ाव इसका 300 के लेवल्स के आसपास तक का है, यानी 300 रुपए तक की तो तेजी लगती है, और अगर वो लेवल्स टूटे तो और भी तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। जब तक इसके अंदर कोई सेल ऑफ बनता नहीं है तब तक स्टॉक को होल्ड करें। इमीडिएट सपोर्ट्स बन रहे हैं ये स्टॉक के अंदर 250 लेवल्स के आसपास, यानी 250 का अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो लगा के करें। ऊपर में इमीडिएट 300 सवा 300 के टारगेट। चलिए नीलेश से बातचीत कर लेते हैं, पुणे से मौजूद है। नीलेश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नीलेश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरे पास पराग मिल्क फूड के शेयर है। ओके। 265 के रेट पे लिए थे मैंने जी, और नजरिया क्या रखते हैं आप इसमें? 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, बट रिजल्ट के बाद वो बहुत गिर गया था। जी चलिए, राजेश, इनका सवाल पराग मिल्क पर है। 225 के आसपास का मौजूदा स्तर है, 265 पे नहीं खरीदारी है, 40 रुपए पर शेयर करीब का घाटा हो रहा है। नतीजों के बाद टूटा भी है, सही कहा इन्होंने। आप क्या राय रखते हैं शेयर पे? देखिए सुमित, अगर ये नतीजों के बाद टूटा है तो इसके एक वैलिड रीज़न है, क्योंकि नतीजे देखें तो ख़राब आए थे। 38 करोड़ के आसपास का लॉस आया था, और मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले 1 या 2 तिमाही में कोई कंपनी वापस से टर्न अराउंड करे या प्रॉफिट में आ जाए। बहुत ज़्यादा होगा तो एबिटा लेवल पे पॉजिटिव होता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसे हालात में मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें निवेश रखना चाहिए। जहाँ भी मौका मिले निकल जाए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और भी सवाल हमारे पास आया है, फटाफट से वो ले लेते हैं। रविंद्र का ये सवाल आया है तिलक नगर इंडस्ट्रीज को लेकर। 500 शेयर्स होल्ड करते हैं, 14 रुपए के आसपास की इनकी खरीद है। इनके ऊपर राय क्या देंगे आप सुमित? तिलक नगर इंडस्ट्रीज एग्जिट की सलाह रहेगी। स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब है, वन वे सेल ऑफ देखने को मिला है, और स्टॉक में हमें दबाव ही देखने को मिला है। अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। अगर ये स्टॉक इमीडिएटली 14 रुपए का लेवल क्रॉस करता है नीचे में, तो ये स्टॉक के अंदर और वीकनेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर शायद हो सकता है स्टॉक 10 रुपए तक के लेवल्स दिखा दे। तो कोई कन्विंसिंग लेवल्स नहीं है, कोई कन्विंसिंग ट्रेंड नहीं है, इसके लिए इसके अंदर एग्जिट की सलाह रहेगी। कोई भी छोटा मोटा पुल बैक मिलता है तो निकल जाए, और ऊपर में लगता नहीं है कि एक बार इमीडिएटली 15 साढ़े 15 के ऊपर भी जाने में ये पॉसिबिलिटी है, तो आई थिंक एग्जिट करना चाहिए। जी चलिए, हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं नंबर से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ वरुण बेवरेजेस की मैनेजमेंट मौजूद है। नंबर्स पे आए हैं, घाटा 99 करोड़ से घट के करीब 90 करोड़ रुपए आया है। वाई बेसिस पे शेयर में 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। मिस्टर रवि हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नंबर्स थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, EBITDA फ्रंट पर भी स्पेशली ज़्यादा बेहतर नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है, कंसीडरिंग नेट प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन के फ्रंट पर। क्या प्रोमिनेंट रीजन रहे सर जो अच्छे नंबर आज के? नहीं, हमारे मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं, हमारा वॉल्यूम ग्रो हुआ है। अगर आप देखें रेवेन्यू 13.5% से ग्रो हुई है, और हमारे EBITDA मार्जिन्स 25.4% से ग्रो हुए हैं 795 करोड़ पे, और हमारा पैट 73.8% से ग्रो किया है जो 151 करोड़ पे आया है। तो हमारे एक्चुअल मार्जिन इंक्रीज हुए हैं 18.7% से 20.6% पे आए हैं, तो उसका पूरे साल का इफेक्ट आया है। ओके मिस्टर जयपुरी, एक चीज ये भी है कि क्या डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर आया है, और अगर नहीं आया तो क्या कैरी फॉरवर्ड होगा अगले क्वार्टर के लिए? लास्ट क्वार्टर में इफेक्ट जरूर आया है, तो इसीलिए अक्टूबर टू दिसंबर नंबर्स में थोड़ा आप नेगेटिविटी देख रहे हैं। बट वो हमारा वैसे भी बहुत वीक क्वार्टर होता है, सबसे वीक क्वार्टर होता है, क्योंकि हमारा सीजनैलिटी बिजनेस है और विंटर्स के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक कम पीते हैं लोग, तो अक्टूबर दिसंबर वैसे भी बहुत वीक क्वार्टर हमारे लिए होता है हर साल के लिए।
तो इतना मेजर इफेक्ट हमारे को नहीं आया है, बट गोइंग फॉरवर्ड जनवरी ऑनवर्ड्स डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट खत्म हो गया है और हमें आगे इसका कोई इफेक्ट दिखता नहीं, नजर नहीं आ रहा है। राइट सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपने जैसे कहा कि ये सीजनली वीक क्वार्टर रहा है आपके लिए, पर इस बार भी जिस तरीके से एनालिस्ट कह रहे हैं कि ऑनसेट ऑफ समर्स जल्दी होने वाली है, क्या उसको देखते हुए मार्जिन्स ऑलरेडी आपने कहा एक्सपैंड हो रहे हैं, तो आगे जाते हुए किस तरीके का ग्रोथ आउटलुक आप देख रहे हैं मार्जिन्स फ्रंट पर भी और टॉप लाइन फ्रंट पर भी? देखिए, मैं एग्जैक्ट आउटलुक तो नहीं बता सकता आपको, बट जैसे हमारे पिछले लास्ट 15-20 सालों से रहा है, हमारे एनुअल ग्रोथ्स अच्छी आ रही हैं, डबल डिजिट ग्रोथ्स रही हैं, तो कोई रीजन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस साल हमारे को वो नहीं मिलनी चाहिए। और हमारे वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, कंसोलिडेशन हमारी हो चुकी है, जो हमने पेप्सी का बड़ा एक चंक खरीदा था 2015 में, उसकी प्रॉपर कंसोलिडेशन अब हो चुकी है, तो सब चीजों का इफेक्ट आना चाहिए। और हमने इंटरनेशनल मार्केट में ज़ाम्बिया के अंदर अपनी इक्विटी स्टेक 60% से 90% पे ले जा रहे हैं, जो हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई चीज नेगेटिव इस साल के लिए मुझे दिख रही हो। एब्सोल्युटली।